हेलो अरे मोकलूं करे आयो या अच्छा पोइ हाणे असांजा क्लास जो हिते हलनि था अच्छा इहो स्टॉक बुक कहिड़ो हूंदो आहे स्टॉक बुक डॉक्टर शाहज़िया जो अॼु घणो करे लेटर निकिरी वेंदो उनजो हस्बैंड अचे पियो याकूब उहो चए पियो त शेर जमा खे ऐं पांधीअ खे ख़बरूं हूंदियूं त चार्ज कीअं वठिबी आहे चेयरमैन खां अच्छा अच्छा मां ॻाल्हायां थो पोइ भला क्लास आहे ऐं वठां टाइम थी वियो आहे हा अच भला साईं जय अच भला हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा आवाज आ रही है हेलो बेटा आवाज आ रही है हेलो यस सर आ रही है यस सर बड़ी मेहरबानी आपने रिप्लाई किया इतनी लेट क्यों आवाज सही आ रही है कम आ रही है सर सही आ रही है ठीक है बेटा so now today we will start the embryology of head and neck
हम्म, हाणे वो निशान जी त मूंखे ख़बर कोन थी पई, बाक़ी पाज रिकॉर्डिंग, हा स्टॉप रिकॉर्डिंग आहे कि उन जे मथां पाज रिकॉर्ड, निशान किथे था चओ त ईंदो आहे? हा डॉट वांगुरु इहे ऑन ऑफ पे थो थिए, जीअं इहे पॉइंटर हूंदो आहे। ठीकु आहे, ओके। अच्छा। हम्म, हिकिड़ो लिखियल आहे इनवाइट म्यूट ऑल, ॿियो अनम्यूट। न न हींअर म्यूट ते हू माना गहरो कलर आहे त म्यूट लॻा पिया आहिनि, म्यूट ऑल। हम्म, ठीकु आहे, ठीकु आहे, बसि स्टार्ट आहे 9:45 ते आहे। ठीकु आहे, ठीकु आहे, ओके। सो आवाज आ रही है? यस सर। और पीपीटी भी शो हो रही है? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। So now, after the urogenital system we have completed, now we start the head and neck embryology, how the head and neck form by the embryologically. So first topic is the pharyngeal arches, pouches and groove or cleft. In the head and neck, the first topic is the pharyngeal arches, pharyngeal pouches, pharyngeal cleft. These are the structure which form the structure of the neck. Structure in neck, the bone, muscles and other tissue are found by these three. One is the arches, second is the pouch, and third one is the groove or cleft. So collectively we called it a pharyngeal pouch, cleft or groove. Collectively we say there is a pharyngeal apparatus. The head and neck region of the 4-week human embryo somewhat resemble these region of the fish embryo of the comparable stage. In the initial stage, यहाँ पहले इसको हम brachial plexus ब्रेकियल एपराटस भी कहते थे, ब्रेकियल ग्रूव भी कहते थे, इसलिए इसका नाम ब्रेकियल उससे जो फिश की गिल्स होती हैं उससे रिजेंबल कर रही थी. नाउ डे वी कॉल्ड एज ए pharyngeal groove, pharyngeal apparatus, pharyngeal arches. So in the head region and the neck region at the 4-week of the gestational age somewhat resemble of these pharyngeal apparatus to the fish gills of the fish. So that's why it is a in old name is the brachial apparatus.
This explains the former use of the designation brachial apparatus. Brachial is derived from the Greek word brachia, or the gills of the fish. So brachial apparatus is the combination of the four. One is the pharyngeal arches, brachial apparatus or pharyngeal apparatus. Pharyngeal apparatus is consist of the pharyngeal arches, pharyngeal pouches, pharyngeal groove or cleft, and pharyngeal membrane. These four structure collectively causes the pharyngeal apparatus. ये आप देखें पिक्चर में, ये आपकी एक पिक्चर है जो एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज है। यहाँ पे नेक रीजन पे ये आपका ये फेरेंजल आर्चेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आपका नेक रीजन है, यानी कि जहाँ पे माउथ और इसोफेगस और ये उसके अराउंड, उसके बायलेटरली फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, ये जो बार स्ट्रक्चर है इस ये कहते हैं फेरेंजल आर्चेस। और इसका जो आउटर है वो फेरेंजल क्लिफ्ट या फेरेंजल ग्रूव, इसका जो इनर है उसको फेरेंजल पाउचेस कहेंगे। ये बार ऑफ द mesenchymal tissue called as the pharyngeal arches, and this is the first pharyngeal arch, this is the second pharyngeal arch, this is the third, and this is the fourth pharyngeal arch, and the fifth pharyngeal arches. So in the pharyngeal arches there is a between the groove on the outside we called as a cleft, on the inside we called as a pouches. तो अंदर की साइड पे एंडोडर्मल की एपिथेलियम होगी और बाहर से एक्टोडर्म की होगी, और बीच में ये मेसेनकाइमा पड़ी हुई है। तो ये जो फर्स्ट फेरेंजल आर्चेस का ये जो टिश्यू पड़ा हुआ है, दीज आर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म। सो ये बीच वाला हिस्सा मेसोडर्म, इसके अंदर की साइड पे एंडोडर्म और इसके आउटर साइड पे एक्टोडर्म। सो इसको हम कलेक्टिवली कह रहे हैं फेरेंजल मेम्ब्रेन। फेरेंजल मेम्ब्रेन में क्या है, एक्टोडर्म बाहर की साइड में, बीच में मेसोडर्म, और इन साइड पे जो पाउच को लाइनिंग दे रहा है, इनसर्कलिंग कर रहा है, वो उसको कह रहे हैं हम एंडोडर्म। तो इसको हम कहेंगे फेरेंजल मेम्ब्रेन। ये फेरेंजल आर्चेस, ये फेरेंजल क्लेफ्ट, ये फेरेंजल पाउच, और पाउच और क्लेफ्ट के बीच में ये जो स्पेस है तो इसको कह रहे हैं मेम्ब्रेन। फेरेंजल मेम्ब्रेन आउटसाइड इज encircled lined by the ectoderm, while the inside it is lined by the endoderm. There is a between these endoderm and ectoderm there is a mesoderm. So pharyngeal arches contain the ectoderm, mesoderm, and endoderm. So these structure is present in the bilaterally in the neck. They will form the neck structure and some part of the head region. So we will discuss later on this. This is the pharyngeal apparatus. So pharyngeal apparatus is a combination of the pharyngeal arches, pharyngeal pouches, and pharyngeal cleft and pharyngeal membrane. We discussed this picture. Now we discuss the pharyngeal arches. Pharyngeal arches begin to develop early in the 4th week as a neural crest cell migrate into the head and neck region. Brachial arches का जो टिश्यू है मोस्टली जो है मेसोडर्म से वो उसकी अराइजेशन होती है, लेकिन न्यूरल क्रेस्ट सेल का जब हम पढ़ रहे थे तो न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेट कर रहा था। न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या है, न्यूरोएक्टोडर्म। न्यूरोएक्टोडर्म का जो न्यूरिलेशन हो रही थी, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही थी, तो जब न्यूरल फोल्ड आपस में ज्वाइन कर रहे थे तो उसका जो अपर पोर्शन का सेल थे वो एग्रीगेट करके वो सेपरेट हो रहे थे, उसको हम कह रहे थे न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरल क्रेस्ट सेल वो फिर माइग्रेट कर रहे थे डिफरेंट पाथवे से, डार्सल पाथवे भी था, वेंट्रल पाथवे भी था। तो इस पाथवे से ये माइग्रेट करके जा रहे हैं कहाँ पे, अर्ली इन द 4th वीक एज अ न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेट इनटू द हेड एंड नेक रीजन। जब ये हेड एंड नेक रीजन में माइग्रेट कर गए हैं तो वहां पे ये मेसेनकाइमा में चेंज हो रहे हैं और ये फर्दर फेरेंजल आर्चेस का पार्ट हो जाता है। और फेरेंजल आर्चेस में फर्स्ट पेयर ऑफ द फेरेंजल आर्च, perimordium of the jaw, appear as a surface elevation lateral to the developing pharynx. जो फर्स्ट फेरेंजल आर्चेस मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि bilateral from the left side and the right side there is a bar of the tissue which is called as the arches. So first pair of the pharyngeal arches
of the jaw appear as a surface elevation lateral to the developing pharynx. Pharynx के lateral side पे एक elevation produce हो रही है, उसको हम कह रहे हैं pharyngeal arches. Soon other arches appear as oblique disposed rounded ringe on the each side of the future head and neck region. First pharyngeal होगा, फिर second pharyngeal arch, फिर third, फिर fourth. तो इस तरह ये आप देखें कि ये एम्ब्रियो है, उसकी जो लेटरल साइड पे फेरेंक्स वाली जगह है, वहां पे एक एलिवेशन प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम आर्च कह रहे हैं. These are the first pharyngeal arch, second pharyngeal arch, third pharyngeal arch, and fourth pharyngeal arch. So between the arches, on the inside, inner side there is a pouches, and outer side there is a cleft. So we discussing about the pharyngeal arches. After pharyngeal arches, we will discuss the cleft and inner. Pharyngeal arches, जो है, by the end of the 4th week, 4 pair of the pharyngeal arches are visible externally. 4 pair of the pharyngeal arch. First pharyngeal arch, second, third, and fourth. 5th and 6th arches are rudimentary and are not visible on the surface of embryo. So first, second, third, and fourth pharyngeal arches appear हो रहे हैं. 5th और 6th arches जो है वो rudimentary है and are not visible on the surface of the embryo. The pharyngeal arches are separated by each other by the fissure called as a pharyngeal groove. On the outside, there is a fissure called as a pharyngeal groove or pharyngeal cleft, while they are remembered in the craniocaudal sequence. They are first जो पहला होगा वो upper side पे होगा, फिर second, फिर third, फिर craniocaudal sequence are these sequence. The first pharyngeal arch, also called as a mandibular arch, develop maxillary and mandibular prominence. First pharyngeal arch is the main part in the formation of the face. Face having a 2 bones, big bones, which are form almost whole face. One is the mandible, other is the maxilla. So first pharyngeal arch is formed the mandible, also called as a mandibular arch, develop as a maxillary and mandibular prominence. First pair of the pharyngeal arches play a major role in the facial development. The second pharyngeal arch, also called as a hyoid arch, contribute the formation of the hyoid bone. Hyoid bone, thyroid bone, ये नीचे आप ट्रेस करेंगे चिन से, आपको जो नेक में प्रोमिनेंस लगती है, तो this is the hyoid bone. So this hyoid bone is found by the second pharyngeal arch. ऊपर जो mandible है और maxilla है, they are found by the each arch give us the muscle, give us the bone, and give having a own blood supply, having a own nerve supply. So जितने भी फर्स्ट pharyngeal arches के होंगे, तो उससे कौन से बोन बन रहे हैं, कौन सी यानी कि उससे मसल बन रही है, मसल का कौन सा पोर्शन बन रही है, और उसकी आर्टीरियल सप्लाई कौन सी है, और उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है. So each arch is having a different nerve supply, different blood supply, and different derivative of the bone and muscle. The first pair of the pharyngeal arch play a major role in the facial development. Second pharyngeal arches, hyoid arches, contribute to the formation of the hyoid bone. The pharyngeal arch component, each pharyngeal arch consists of the core of the mesenchyma, covered externally by the ectoderm, internally by the एंडोडर्म. मैंने आपको बताया कि एक कोर ऑफ टिश्यू पड़ा हुआ था, वो एक्सटर्नली जो है कवर्ड था एक्टोडर्म से और इंटरनली कवर्ड थे एंडोडर्म में. सो ईच pharyngeal arch consists of the core of the mesenchyma. It is covered externally by the ectoderm and internally by the endoderm. In the 5th week of the original mesenchyma is derived from the mesoderm. ये जो उसमें कुछ और न्यूरल क्रेस्ट सेल जो माइग्रेट कर रहे थे वो भी कन्वर्ट हो रहे थे. अब ये कह रहा है इन द 3rd वीक द ओरिजिनल mesenchyma, जो mesenchymal टिश्यू है, वो जो कनेक्टिव टिश्यू है, दे आर ऑल फॉर्म्ड बाय द mesoderm and some contribution of the neural crest cell. So in the 3rd week the original mesenchyma is derived from the mesoderm. During the 4th week most of the mesenchyma is derived from the neural crest cell that migrate into the pharyngeal arches. The fat
Result of the pharyngeal arches क्या है? The pharyngeal arches contribute exclusively to the formation of the face, nasal cavity, mouth, larynx, pharynx, and neck. These structures are found by these pharyngeal arches. So pharyngeal arches, which structure is found by the pharyngeal? Face, nasal cavity, mouth, larynx, pharynx, and neck are found by the pharyngeal arches. During the 5th week, the second pharyngeal arch enlarge and overgrow the third and fourth arch, forming the ectodermal depression called as a cervical sinus. During the 5th week, जो second pharyngeal arches है वो enlarge हो रहा है, overgrow कर रहा है third और fourth arches के, और forming the ectodermal, बाहर की साइड में ectodermal depression बना रहा है, इसको कह रहे हैं हम cervical sinus. इस पिक्चर में आप देखें, ये सेकंड फेरेंजियल आर्चेज है. सेकंड फेरेंजियल आर्च गिरो एंड ओवरलोपिंग द थर्ड एंड फोर्थ आर्चेज एंड फॉर्म द एक्टोडर्मल डिप्रेशन कॉल्ड एज ए सर्वाइकल साइनस. आगे चल के ये सर्वाइकल साइनस भी क्लोज हो जाएगा और ये स्मूथनेस हो जाएगी. अगर ये परसिस्टेंट रहे तो ये साइनस प्रोड्यूस करेगा, सर्वाइकल साइनस. फिर आगे इसमें की जो है वो फर्दर उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो इसका ये एक्टोडर्मल डिप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम सर्वाइकल साइनस कह रहे हैं. बाय द एंड ऑफ द 7th वीक, द सेकंड टू द फोर्थ फेरेंजियल ग्रूव, सेकंड टू द फोर्थ फेरेंजियल ग्रूव मींस क्लेफ्ट जो है आउटसाइड पे. तो एंड ऑफ द ये जो वीक थे, तो इतना नहीं है कि 4th वीक में क्या हो रहा है, 5th वीक में क्या हो रहा है, लेकिन आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि एक फेरेंजियल आर्चेस है, पाउचेस है, क्लेफ्ट है. फेरेंजियल आर्चेस क्या है, क्लेफ्ट क्या है, पाउच क्या है. एक बार ऑफ द टिश्यू पड़ा हुआ है वो है आर्चेस, उसको एक्सटर्नली एक क्लेफ्ट है और एक्टोडर्म का सर्कलिंग कर रहा है, लाइनिंग कर रहा है. और जो इंटरनली है वो एक डिप्रेशन है जिसको हम पाउच कह रहे हैं, और उसको जो लाइनिंग कर रहा है एंडोडर्म कर रहे हैं. तो ये है मेन के, वो बायलैटरली होता है, लेफ्ट साइड पे भी होगा, राइट साइड पे भी होगा. फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस के हम डेरिवेटिव्स पढ़े कि बोन के हिसाब से, तो मैंडिबल और मैक्सिला बोन है वो मेन इसकी डेरिवेटिव्स है. बोन में कुछ और भी हैं वो अब डिस्कस करेंगे. और जो सेकंड है उसमें हायोड, उसको हायोड आर्चेस भी कह रहे हैं, फर्स्ट को मैंडिबुलर आर्चेस भी कह रहे हैं. तो ये कह रहा है कि 5th So by the end of the 7th week, the second to the fourth pharyngeal groove, and the cervical sinus have disappear. Second जो का groove था और second to the fourth, third बीच में आया और fourth वाला groove, और उनके बीच में एक सब ectodermal depression था जिसको हम cervical sinus कह रहे हैं. They are all disappear. एक cervical sinus भी disappear हो जाएगा. Second, third और fourth जो फेरेंजियल गुरु और क्लेफ्ट है वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, और गिविंग द नेक ए स्मूथ कंटोर. तो ये आप देखें कि ये था फर्स्ट फेरेंजियल गुरु, ये था सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो ये सेकंड फेरेंजियल गुरु और क्लेफ्ट भी क्लोज हो रही है, थर्ड और फोर्थ, और ये सर्वाइकल साइनस है. दे आर ऑल बिकम ए डिसअपियर and outer side neck become a smooth. So a typical pharyngeal arch contain aortic arch, an artery that arise from the truncus arteriosus of the paramardial heart. जब हमने हार्ट आपको पढ़ाई थी तो उसमें एरोटिक आर्चेस थे, और एरोटिक आर्चेस के फिर डिफरेंट डेरिवेटिव्स थे. तो वहां से एरोटिक आर्चेस से फेरेंजियल आर्चेस की आर्टीरियल सप्लाई आएगी. और कार्टिलेजस, एक तो आर्टरीज की अलग होगी और दूसरा है कार्टिलेजिनस रॉड दैट फॉर्म द स्केलेटल ऑफ द आर्चेस. तो आर्चेस में क्या क्या है, ये टिपिकल फेरेंजियल आर्चेस कंटेन में एक तो एरोटिक आर्चेस का कुछ पार्ट है जैसे आर्टरी आएगी,
कार्टिलेजियस रॉड प्रोड्यूस है जो स्केलेटल ऑफ द आर्चेस, जो जैसे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है तो वो मैंडिबल और मैक्सिला बना रहा है, तो इसी तरह सेकंड में हायोइड बोन बन रहा था, तो कार्टिलेजियस पार्ट होगा और मस्कुलर कंपोनेंट होगा दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द मसल इन द हेड एंड नेक। तो जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस ये हैं उसकी मसल ऑफ द मेस्टिकेशन और सेकंड की मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, इसी तरह हर यानी कि 4 पोर्शन हैं ईच आर्चेस में। ईच आर्चेस में 4 पोर्शन, वन इज द एरोटिक आर्चेस का पोर्शन जो आर्टरी है जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस से अराइज होगी, और ये एरोटिक आर्चेस फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस को आर्टीरियल सप्लाई देंगी। कार्टिलेजस पार्ट जो बोन की फॉर्मेशन होगी वो टोटली कार्टिलेजस पार्ट से बनेगा, और मस्कुलर कंपोनेंट जो मसल कंपोनेंट है वो मसल से बनेगा, और द ए नर्व दैट सप्लाई द म्यूकोजा एंड मसल राइट फ्रॉम द ईच। और नर्व सप्लाई हर आर्चेस की अपनी नर्व है, जैसे फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस है तो उसकी ट्राइजर्मिनल नर्व की मैंडिबुलर और मैक्सिलरी है, और सेकंड फेरेंजियल आर्चेस की फेशियल है, इसी तरह थर्ड की ग्लासोफेरेंजियल है, फोर्थ और फिफ्थ की जो है वो है वेगस नर्व। वेगस की फिर 2 ब्रांच है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, तो वो सप्लाई कर रही है, वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आर्चेस है ईच आर्च कंटेनिंग द 4 कंपोनेंट, one is the aortic arches component which give the artery to the arches, other is the cartilaginous component which form the skeleton of the arches, and muscular component and having also a separate nerve supply। तो ये आपका आप देखें कि ये इनिशियल स्टेज मिड ब्रेन की जगह है, और ये आपकी आर्चेस जो फेरेंजियल आर्चेस पड़े हुए हैं, ये एरोटिक आर्चेस है फर्स्ट से लेके सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये जो एरोटिक आर्चेस हैं ये अपनी इससे ही उसकी नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई आएगी आर्चेस, फिर उसकी अलग से कार्टिलेजस पोर्शन है, मस्कुलर पोर्शन है, और नर्व सप्लाई क्या है। तो in this way, so each arches contain the 4 component: arterial component, nerve component, skeletal component, muscular component। तो derivative of the pharyngeal arches में जो कार्टिलेजस कंपोनेंट है ईच, यानी कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से कार्टिलेजस कौन से हैं, यानी बोन कौन से बन रहे हैं सेकंड से थर्ड से, अभी हम डेरिवेटिव कार्टिलेजस के हिसाब से डार्सल एंड ऑफ द फर्स्ट आर्च फर्स्ट आर्च कार्टिलेज Meckel's cartilage ossified to the malleus and incus। तो malleus and incus जो dorsal end of the first pharyngeal arches है उसका जो कार्टिलेजन पोर्शन है उसे malleus से internal ear के ये बोन है, और middle part of the cartilaginous part anterior ligament of the malleus sphenomandibular ligament, and the ventral part of the first pharyngeal cartilage form the paramedia of the mandible। The cartilages disappear as mandible develop around the it। तो जो फर्क क्या था, तो कार्टिलेजस पोर्शन, ये कार्टिलेजस पोर्शन फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, मेलियस और इनकस, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये स्फिनोइड बोन है, तो स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट ये, और स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और ये मेकल्स कार्टिलेज है जिससे मैंडिबल की फॉर्मेशन होगी, आगे चल के में कार्टिलेज कन्वर्ट होगा बोन में। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस के जो कार्टिलेज है तो ये आपके हैं मेलियस, इनकस, स्फिनोमैंडिबुलर और मैंडिबल। इसी तरह सेकंड में आपके स्टेपिड्स आ रहे, स्टेलॉइड आ रहे, और ये जो स्टाइलोहाइड लिगामेंट आ रहा है, लेसर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन आ रहा है, और अपर पोर्शन ऑफ द हायोइड बोन आ रहा है। तो हायोइड बोन के लेसर हॉर्न होता है, ग्रेटर हॉर्न होता है, अपर पार्ट ऑफ द हायोइड बोन होता है, लोअर पार्ट ऑफ हायोइड बोन होता है। लेसर हॉर्न एंड अपर पार्ट ऑफ द हायोइड बोन and the styloid process and stipids are the dry cartilage of the second pharyngeal arches, और थर्ड फेरेंजियल आर्चेस में आपका ग्रेटर कार्नियो ऑफ द हायोइड बोन आ रहा है, और लोअर पोर्शन ऑफ द हायोइड बोन आ रहा है, थर्ड का ये है। और फोर्थ में आज के लेरेंजियल कार्टिलेज जिसमें थायराइड कार्टिलेज भी आ रही है और क्रिकोइड कार्टिलेज आ रही है, इसमें एक एपिग्लॉटिस होता है, एक्सेप्ट दैट बाकी होल जो है लेरेंजियल कार्टिलेज आर फाउंड बाय द fourth pharyngeal arches। So
तो इसके हिसाब से जो डार्सल एंड है, जो पीछे वाली साइड है, उससे मेलियस और इनका मिडिल पोर्शन से स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, वेंट्रल पोर्शन से मैंडिबल। तो इसका जो आप फेस से लेंगे तो ये वेंट्रल पोर्शन, ये डार्सल पोर्शन से मेलियस और इनकस, और जो मिडिल पोर्शन है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और जो वेंट्रल पोर्शन है वहां से मैंडिबल की फॉर्मेशन हो रही है। तो डार्सल एंड ऑफ द सेकंड फेरेंजियल आर्च इज also called as a Richard cartilage, ossified to form the stapes and the styloid process of the temporal bone. ये जो डार्सल एंड ऑफ द सेकंड फेरेंजियल आर्चेस का जो कार्टिलेजस पोर्शन है डार्सल एंड पे क्या बना रहा है, एक तो स्टेपिड्स, इंटरनल एयर के तीन बोन होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस और इनकस जो है वो फाउंड बाय द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, व्हाइल द स्टेपिड्स इज द फाउंड बाय द सेकंड फेरेंजियल आर्च। और दूसरा ये आपका जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और इसका जो फर्स्ट सेकंड फेरेंजियल आर्च का वेंट्रल पोर्शन है, उससे आपका ये वेंट्रल एंड ऑफ द सेकंड आर्च कार्टिलेज ossified to form the lesser cornu and the superior part of the hyoid bone. Lesser cornu and superior part of the hyoid bone से, और the greater cornu and inferior part of the hyoid bone found by the थर्ड फेरेंजियल आर्च। सेकंड का डार्सल एंड और वेंट्रल एंड। अब ये देखिए सेकंड का डार्सल से स्टीपिड्स हो रहा है, स्टाइलॉइड प्रोसेस हो रहा है, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट, और जो वेंट्रल पोर्शन से लेसर कार्नियो ऑफ द हायोइड बोन एंड द अपर पोर्शन ऑफ द हायोइड बोन, दीज आर द फाउंड बाय। और जो थर्ड से उससे ग्रेटर कार्नियो एंड लोअर पोर्शन ऑफ द हायोइड बोन की फॉर्मेशन होगी। और थायराइड जो है, और जो फोर्थ फेरेंजियल आर्चेस की कार्टिलेज है वो लेरेंजियल कार्टिलेज है, जिसमें का थायराइड कार्टिलेज भी आ रहा है और क्रिकोइड कार्टिलेज भी आ रहा है। सो द वेंट्रल एंड ऑफ द सेकंड आर्चेस ossified लेसर कार्नियो एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन एंड इट्स pericordium form the stylohyoid ligament. So third arches की ossification ossified to form the greater cornu and inferior part of the hyoid bone, and fourth and sixth arch cartilage fused to form the laryngeal cartilage except epiglottis, which is developed from the हाइपोब्रेकियल इमिनेंस। जब हम टंग की फॉर्मेशन पढ़ेंगे वहां पे हाइपोफेरेंजियल इमिनेंस आएगी, तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे कि एपिग्लॉटिस वहां से बनता है। बाकी जो लेरेंजियल कार्टिलेज में थायराइड कार्टिलेज है, एरिनोइड कार्टिलेज है, कार्नियो कार्टिलेज है, तो ये छोटे मोटे बहुत सारे 5-6 बोन्स होते हैं। दे आर ऑल फॉर्म्ड बाय द फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्चेस fused together and form the laryngeal cartilage except epiglottis, which is developed from the hypopharyngeal eminence. The fifth pharyngeal arch is a rudimentary and has no derivative. तो जो फिफ्थ है pharyngeal arches उसकी कोई भी यानी कि डेरिवेटिव नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए होता है फिर डिसअपीयर डिजेनरेट हो जाता है। तो जो अब ये तीनों हमने उसका जो कार्टिलेजस पोर्शन है, ये आपका फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस का कार्टिलेजस पोर्शन मेलियस, इनकस, स्टाइलॉइड, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट और ये मैंडिबल, और सेकंड से स्टीपिड्स, स्टाइलॉइड प्रोसेस और लेसर कार्नियो एंड अपर पोर्शन ऑफ द हायोइड बोन, और जो है थर्ड से ग्रेटर कार्नियो एंड लोअर पोर्शन ऑफ द हायोइड बोन इज फाउंड बाय द, और फोर्थ जो है थायराइड लेरेंजियल कार्टिलेज एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। लेरेंजियल कार्टिलेज में मोस्टली थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड कार्टिलेज, और दूसरे छोटे भी होते हैं, वो आप ग्रास एनाटॉमी पढ़ेंगे। जो भी लेरेंजियल कार्टिलेज है ऑल आर फाउंड बाय द फोर्थ फेरेंजियल आर्चेस कार्टिलेजस पोर्शन से आएगा एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो हाइपोफेरेंजियल इमिनेंस होगी, जब हम टंग की डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां से उसकी फॉर्मेशन होती है। तो डेरिवेटिव ऑफ द फेरेंजियल आर्चेस की ये हमने कार्टिलेजेस पढ़ रही है। अब मसल आपको कहा कि 4 पोर्शन होते हैं, तो एरोटिक आर्चेस जो उसकी ब्लड सप्लाई देते हैं, उसकी नर्व सप्लाई होती है। तीसरा उसका कार्टिलेजस पोर्शन होता है, और मसल कार्टिलेजस को हमने डिस्कस किया। अब ये मसल है, मस्कुलेचर ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस फॉर्म
मसल ऑफ द मेस्टिकेशन, एक दो और भी हैं लेकिन आप मसल ऑफ द मेस्टिकेशन, अब कलेक्टिवली अगर ये भी आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सपोज आप वाई वाई दे रही है तो बेटा आप फेरेंजियल आर्चेस, फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस की मसल डेरिवेटिव की मसल के नेम बताओ, आपको नहीं आ रहा है, सिर्फ मसल ऑफ द मेस्टिकेशन आप कहेंगी तो ये भी आपको, यानी कि आप पता चलेगा कि आपको आप पढ़ा हुआ है और आपको इतना पता है कि मसल ऑफ द मेस्टिकेशन। इसी तरह सेकंड फेरेंजियल आर्चेस जो है उसमें जो हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस फॉर्म द स्टिपेडियस मसल, स्टाइलोहायोइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, auricular and muscle of the facial expression। मसल ऑफ द मेस्टिकेशन फर्स्ट लाइक के लिए याद करें और मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन सेकंड के लिए याद करें। बाकी जो दूसरी मसल है उसका थर्ड की एक ही मसल है जो स्टाइलोफेरेंजस मसल है। और फोर्थ आर्चेस फॉर्म द क्रिकोथायरॉइड, लेवेटर, विली पेलेटाइनी एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरेंक्स। एंड सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चेस the intrinsic muscle of the larynx। These are the muscle which are found by the arches first, second, third, fourth and sixth। जो फिफ्थ है वो rudimentary है और disappear, degenerate हो जाता है। सो हमने कार्टिलेजस डिस्कस किया, फेरेंजियल आर्चेस के मसल डिस्कस किए और उसकी जो है ये आप देखें कि मसल ऑफ द मेस्टिकेशन, मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, और ये आपका जो थर्ड मसल था वो स्टाइलोफेरेंजस मसल थी थर्ड आर्चेस से। और फोर्थ आपके जो आ रहे थे फोर्थ से कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरेंक्स एंड इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंक्स सिक्स्थ थे। तो इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंक्स यहाँ पे लेरिंक्स होता है तो, और कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरेंक्स, दीज आर द फॉर्म्ड बाय द फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चेस। डेरिवेटिव में कार्टिलेजस हमने डिस्कस किया, उसके बाद मसल डिस्कस किया। अब नर्व, कार्डल ब्रांच ऑफ द ट्राइजर्मिनल नर्व, ट्राइजर्मिनल नर्व के 5 ब्रांचेस होती है, तो जो उसके लोअर जो 2 हैं तो उसमें मैक्सिलरी और मैंडिबुलर सप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो आपको कहा जाए कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की नर्व बताएं तो आप ट्राइजर्मिनल नर्व कह सकते हैं। तो फिर आगे कहेगा कि ट्राइजर्मिनल नर्व की कौन सी ब्रांच, सर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। मोस्टली ये जो बोन भी यही बना रहा है, उसकी आसिफिकेशन जो कार्टिलेजस पोर्शन है वो मैंडिबुल बना रहा है, तो मैंडिबुल और मैक्सिला बना रहा है, तो आप मैंडिबुल और मैक्सिलरी ट्राइजर्मिनल। और सेकंड से 5, 7, 9 और 10, 5, 7, 9, 10 4 आर्चेस है। पहले के लिए 5, सेकंड के लिए 7 और थर्ड के लिए 9 और फोर्थ और सिक्स्थ के लिए जो है 10th क्रेनियल नर्व होती है, जो फिर उसकी ब्रांचेस अलग अलग से। तो जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के लिए नर्व है, दे आर द ट्राइजर्मिनल नर्व और ब्रांच ऑफ द ट्राइजर्मिनल मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलरी। द फेशियल एंड द सेकंड फेरेंजियल आर्च के लिए फेशियल, थर्ड फेरेंजियल आर्च के लिए ग्लासोफेरेंजियल एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ के लिए वेगस नर्व सप्लाई द सप्लाई। तो फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए फेशियल, ग्लासोफेरेंजियल थर्ड के लिए एंड कार्डल फोर्थ एंड सिक्स्थ के लिए वेगस नर्व। फोर्थ आर्च इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। फोर्थ फेरेंजियल आर्च है उसमें सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, सिक्स्थ के लिए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ द फेरेंजियल आर्चेस। कितने थे फेरेंजियल आर्च? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो उनके लिए जो नर्व सप्लाई थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो जो नर्व सप्लाई थी फर्स्ट के लिए ट्राइजर्मिनल नर्व, सेकंड के लिए फेशियल नर्व, थर्ड के लिए ग्रासोफेरेंजियल नर्व, फोर्थ और सिक्स्थ के लिए वेगस नर्व, उसकी फिर अलग से ब्रांच। अब हम today we have completed the pharyngeal arches, and in next lecture we will discuss about the pharyngeal pouches and pharyngeal cleft. In this way we will discuss also the tongue, thyroid, all structure of the neck. So thank you so much. Any question from you, you can ask. सर ये जो नर्व्स में 5, 7, 9, 10 बताया, इसको रिपीट कीजिएगा।
बेटा मैंने कहा था कि जो आर्चेस है उसके 4 कंपोनेंट थे। उसमें एरोटिक आर्चेस से उसकी आर्टरी आ रही थी, फिर उसमें जी सर। मस्कुलर पोर्शन था, उसमें कार्टिलेजस पोर्शन था, उसमें नर्व का पोर्शन था। नर्व। हाँ, यस सर। नर्व के हिसाब से जो मसल है वो भी हर आर्चेस के बोन भी अलग है, मसल भी अलग है, नर्व भी अलग है, और जो ब्लड सप्लाई है वो भी अलग है। तो हमने डिस्कस किया था कार्टिलेजस, तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस है मैंडिबुल और मैक्सिला, इसी तरह सेकंड से हायोड, ये इसी तरह हमने डिस्कस किया। तो मसल भी अलग थी, फेशियल एक्सप्रेशन थी और मसल ऑफ द मेस्टिकेशन थी। इसी तरह जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस है उसकी जो नर्व सप्लाई है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजर्मिनल नर्व की कार्डल 2 ब्रांच, मैंडिबुलर ब्रांच एंड जो मैक्सिलरी ब्रांच है वो मैक्सिलरी ब्रांच। यस सर। फर्स्ट फेरेंजियल, इसी तरह सेकंड को फेशियल 7 और थर्ड को ग्लासोफेरेंजियल 9th और फोर्थ और सिक्स को कह रही है वेगस नर्व। दोनों को वेगस नर्व की अगेन 2 ब्रांच है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो 6 को कर रही है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो 4th को कर रही है। सो दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ द फेरेंजियल आर्चेस। सो फेरेंजियल आर्चेस बायलेटरली होते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ये सारे स्ट्रक्चर राइट साइड पे भी होंगे, लेफ्ट साइड पे भी होंगे। मसल ऑफ मेस्टिकेशन राइट साइड के अलग से हैं, लेफ्ट साइड के अलग है, अलग से हैं। तो सीक्वेंस उनका ये राइट साइड पे भी होता रहेगा और लेफ्ट साइड पे भी होता रहेगा। एनी क्वेश्चन बेटा? अरोटा का बता दें, आपने बताया था ना। जी बेटा, अरोटा का बता दें, आपने इसका फर्स्ट पार्ट जो बता रहे थे ना। एरोटा हमने आपको बताया था कि जब हमें एरोटिक आर्चेस पढ़ रहे थे और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को हमने डिस्कस किया था, आप वहां से थोड़ा कर गए तो एरोटिक आर्चेस भी 4 थे, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो उससे जो आर्च ऑफ एरोटा, एक्सटर्नल एरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दीज आर द सबक्लेवियन आर्टरी, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द एरोटिक आर्चेस। आर्चेस से पूरा वेस्कुलर सिस्टम का ही फॉर्मेशन हुई थी। तो ये जो आर्चेस हैं तो इसमें अलग अलग से, जैसे मैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है तो वहां पे मैक्सिलरी आर्टरी आती है, वो फिर ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। तो इसी तरह तो आपको ये यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी ब्रांच, जैसे मैंडिबुलर की ट्राइजर्मिनल नर्व की लिखा हुआ है कि ये मैंडिबुलर और मैक्सिलरी दे रही थी सप्लाई, उसकी 5 ब्रांचेस थे, लोअर, और जो सेकंड थी उसमें फेशियल थी। इसी तरह आर्टरी का कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है कि ये यानी कि आर्टरी इसको सप्लाई करी। फिर भी मैं क्लियर करके आपको आर्टरी के नेम किसी से देख के और देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर आर्चेज में 4 कंपोनेंट, आर्टीरियल कंपोनेंट, नर्व कंपोनेंट, मस्कुलर कंपोनेंट और कार्टिलेजस कंपोनेंट। और जो आर्टीरियल कंपोनेंट है वो उसकी जो आर्टरी आती है वो जो ये एरोटिक आर्चेज हैं वहां से आती है। तो आप थोड़ा सा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को आप देखेंगे तो ये आर्चेज के अलग अलग डेरिवेट्स हैं, फिर उसकी आपको आर्टीरियल सप्लाई समझ में आ जाएगी। और मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेज की आर्टरी कौन सी है, एक से ज्यादा भी होती है, तो वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, ओके।